Okay, in the last class, we are discussing about the clinical understanding of Raja Yakshma. So, clinically, how it can be understood and how it can be implemented for the treatment purpose also. So, there are four types of Raja Yakshma as explained in the classics. We know that. These four types of Raja Yakshma can be better understood as causes of Raja Yakshma. So when we compare Raja Yakshma with immunocompromised stage and how a Raja Yakshma can be compared with the immunocompromised stage, that we have seen in detail in last two classes, last two videos. But today we will see how these types can be considered as different causes of immunocompromisation. Okay. So first cause, physical cause, which is also called as Ayathabalamaramba or Sahasajanya Raja Yakshma, that has been discussed in detail how excess physical activity, undue physical activity, or Sahasa karmas, or physical activity which is not related to food intake and one's own capacity and strength. So that how it slowly leads to a immunocompromised state and cachexic state, that we have seen in detail as a first cause. The second cause of immunocompromisation or immunocompromised state or Raja Yakshma is nothing but immunological causes. So we have considered these immunological causes under the basis of Vega Sandharana. Vega Sandharana. Now why I have considered this as immunological cause? Now we have explained different types of Vegas. Okay, Vegana Dharayadvatam Kshavatu Trutam Trisham Nidrakasa Sharmashwasa Jrumbhakshu, like that. So we have 13 types of Vegas are explained by Vagbhat. Now actually all these Vegas which is explained, they are nothing but the part of the immune system. If I am taking sneezing is a part of the immune system. So it has got the intention of driving away the foreign particles. And if I am talking about the cough, it is also a protective reflex activity. Hiccup is also a protective reflex activity. If charji is there, that particular omitting reflex, so that is also one of the part of this. Okay, all these reflex activities are mediated by Vega Sandharana. All the reflex activities, basically they are mediated by the sympathetic and parasympathetic activities. Okay, so most of the time. Okay, so there's involvement of, sometimes there is a accessory involvement of the spinal nerves also. But if you look into all the reflexes, cough reflex is mediated by the cough center which is present in the brain. Omitting reflex is mediated by the omitting center which is present in the brain. Okay, sneezing is also likewise. So all the reflexes, defecation, micturition, and then ejaculation, all the reflexes basically they are under the control of hypothalamus, sympathetic, parasympathetic, and central nervous system. So now, if you are forcefully blocking them, so that is nothing but suppression of the body nervous system and as well as immune system, because nervous system is conducting all these activities, reflex activities, to have a immune protection to the body. Okay, सो अगर कहीं पे भी आपको स्नीजिंग आ रहा है, उसका मतलब है वो एलर्जिक सब्सटेंस को बाहर डालने की एक प्रक्रिया है. और स्नीजिंग तभी आता है कि जब बॉडी इम्यून सिस्टम इरिटेट होता है. हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से बॉडी इम्यून सिस्टम इरिटेट होता है. सो देयरफॉर वन और द अदर वे देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ न्यूरो इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम. ठीक है, ये सिर्फ मैं ये नहीं बोल सकता इम्यूनोलॉजिकल है, यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम भी इन्वॉल्व है, स्पेशली कौन सा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, और उसके साथ साथ इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम. अगर रिफ्लेक्स स्टिक से काम नहीं किया, आपने विद होल्ड किया किसी तरीके से, सो इट विल ऑल्सो हैव द प्रॉब्लम टू द बॉडी इम्यून सिस्टम, दैट इज ऑल्सो गेट अफेक्टेड. Okay, so now the different kinds of Adharaniya Vegas are explained towards the protective, they are nothing but the protective reflexes of our body, which are mediated by the autonomic nervous system. So now, when I say Vegas are
विद हेल्ड, कि यूजुअली हम ये कैसे सोचते हैं कि वेग धारणा मतलब मैं फोर्सफुली जो है मैं इसको विद हेल्ड कर रहा हूँ। हाँ, हमें पता है कि जितना भी वेग है, रिफ्लेक्स है, वो सब इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ है ना, दे आर ऑल इनवॉलंटरी एक्टिविटीज। दैट मीन्स इनवॉलंटरी एक्टिविटी शुड नॉट बी सप्रेस्ड। लाइक वॉलंटरी एक्टिविटीज को आप सप्रेस कर सकते हो, बट इनवॉलंटरी एक्टिविटी वो तो सप्रेस करने से बहुत सारे प्रॉब्लम तो होगा ही। सो नाउ दिस reflexes are also the part of the body immune system. So main function of these reflexes are prevention of the entry of various noxious substances. Not only this, whenever the microorganisms are entering inside the body, whenever the foreign bodies enter inside the body, there will be always reflex activity. The reflex of sneezing, reflex of cough, hiccup, yawning, tears, vomiting, etc. helps to prevent the entry of unwanted substances inside the body by their reflex action and keep the respiratory tract always get protected. Now, forceful prevention or withholding or disturbances committed by the person with regard to productive reflexes make the person more vulnerable for infectious disorders. अब ये आ गया बात, you are withholding your body protective reflexes, or there are some conditions within your body because of which these reflexes are withheld. Okay, these reflexes are withheld. That is also Vega Dharana only. For example, cough reflex is a natural cough reflex, we know that. But a person who is smoking in excess, because of excess smoking, what happens? Ciliated columnar epithelium will be damaged, and there is no ciliated action of the columnar epithelium. So sputum will collect there only, and that leads to a center for, or that leads to the different respiratory tract infections. तो यहाँ पे जो स्मोकिंग की वजह से जो हो रहा है वो भी एक तरीके से वेग धारण ही हो रहा है। स्मोकिंग करने की वजह से जो है नॉर्मल प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स जो खांसी का है, जो सीलेटेड खांसी के बाद जो बलगम वगैरह जो बाहर निकलता है, सो दैट इज नॉट हैपनिंग। ओके, सो वॉलंटरली जो चीज़ को हम विदहोल्ड करते हैं वो एक बात हो गया, और दूसरा जो है कुछ डिसीज की वजह से या कुछ कारण की वजह से भी हो सकता है। सो फोर्सफुल प्रिवेंशन, विदहोल्डिंग द और disturbance committed by the person with regard to protective reflexes makes the person more vulnerable for infectious disorders. अब देखो, जितना भी वेगास जो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस दिया है उसमें मैक्सिमम जो है फेशियल एरिया में और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एरिया में। You look into cough reflex, hiccup reflex, sneezing reflex. Okay, then comes jrumba, then comes ashru. Okay, even the vomiting to some extent. And except this some shukra and all, so maximum जितना भी जो रिफ्लेक्सेस बताया है, ठीक है, पुरीशा, मूत्रा, शुक्र, अधोवाता, ये 4-5 छोड़ के जो बाकी मैक्सिमम जो रिफ्लेक्स दिया गया वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में है, बिकॉज द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल एरिया फॉर द एंट्री ऑफ द इन्फेक्शंस और एनी अदर सब्सटेंसेस, एलर्जिक सब्सटेंसेस. So therefore God has given maximum reflexes there, protective reflexes, which is mediated by the autonomic nerve system involuntarily. Okay, so now if you are having a habit of withholding these reflexes, or by different methods you are because of some disease condition your vagas are not properly working, then there is every chance that you are more getting vulnerable to infection. When such repeated infections occur, then you will be having the chance of getting immunocompromisation. Okay, just take the example of cystic fibrosis. Okay, cystic fibrosis is one such condition where the exocrine gland जो भी है उसका secretion एकदम थिक हो जाता है और वो क्लियर नहीं हो जाता, वहीं पे ब्लॉक हो जाता है, ग्लैंड ब्लॉक हो जाता है, तो उसकी वजह से सब गड़बड़ हो जाता है. इट मे हैपन इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इट मे हैपन इन एनी एक्सोक्राइन ग्लैंड लाइक पैंक्रियास एक्सेट्रा. तो यहाँ पे क्या है कि देयर इज अ वेगधारणा, बट दैट वेगधारणा इज बिकॉज ऑफ सम खवाई गुंडे विच इज प्रेजेंट देयर, है ना, वहाँ पे कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस, उसकी वजह से ये हो रहा है. सिमिलरली एनी अदर कंडीशंस, सम एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स may also lead to this problem. Now this is example what already I have given for you.
कि disturbance in the cough reflex occur in excessive smoking and sneezing will be affected by the tobacco inhalers. So रिफ्लेक्स कफ रिफ्लेक्स को ऐसे ही रोकने का जरूरत नहीं है. अगर आप टोबैको इनहेल कर रहे हो या स्मोकिंग कर रहे हो, सो दैट इनडायरेक्टली इफेक्ट ओके कफ रिफ्लेक्स, स्नीजिंग रिफ्लेक्स सबको इफेक्ट करेगा ये. नाउ सिंपल इज नेग्लेक्टिंग द यॉर्निंग, है ना, झुम्बा. एंड यॉर्निंग कब होता है? जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है ब्रेन में. जब न्यूरॉन को जो मिल रहा है ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन, वो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जब कम हो रहा है तब यूजुअली आपको यॉर्निंग आता है. यॉर्निंग में आप लंबी सांस लेंगे तो लंबी सांस लेते क्या हो जाता है कि ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर चला जाता है और ब्रेन को ऑक्सीजन मिलता है. दिस इज़ अ फिजियोलॉजी. तो इसलिए जब नींद में आता है तो उस टाइम में यॉर्निंग आता है, क्योंकि ब्रेन चाहता है कि अभी मैं रेस्ट लेने वाला हूँ, मैं थक गया हूँ. तो उस टाइम में या तो सो जाना चाहिए, है ना, या तो अच्छे से यॉर्निंग करना चाहिए. सो गया तो ठीक है, वैसी नींद आ जाएगा, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा. ठीक है. अगर इस यॉर्निंग को आप फोर्सफुली सप्रेस करते हो, सो भी नहीं रहे हो आप और उसको फोर्सफुली सप्रेस भी कर रहे हो, तब ये दिक्कत है. क्या होगा? अब ब्रेन टिश्यू को जो है ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा. एंड दैट लीड्स टू वेराइटी ऑफ द प्रॉब्लम्स इन लॉन्ग टर्म बिकॉज यू आर सप्रेसिंग ए बॉडी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स. ओके. Now when such habits, इस तरीके का जो हैबिट्स है, वो यॉर्निंग हो सकता है, हिकअप हो सकता है, कफ हो सकता है, स्नीजिंग हो सकता है, ठीक है, श्वास हो सकता है ना. फॉर एग्जांपल आंसू जो आ रहा है आप उसको रोक रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? सो इट्स वन ऑफ द वे ऑफ क्या कि आंसू वहीं पे कलेक्शन होगा. ठीक है. तो जो सेक्रेशन ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड्स, हाउ इट इज मीडिएटेड? इट्स मीडिएटेड बाय द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स. पता है आपको जितना भी सेक्रेशंस है, सो वहाँ पे सब जो है विसरो मोटार फाइबर्स जो सिंपैथेटिक वो सप्लाई करता है. अब रोक रहा है तो क्या मतलब है? आप उसको ब्लॉक कर रहे हो. इट हैज़ गॉट इट्स ओन साइनस में उसका प्रेशर बढ़ सकता है, ऑर्बिटल कैविटी में उसका प्रेशर बढ़ सकता है ना, लैक्रिमल डक्ट में उसका प्रेशर बैक फोर्स जो है बैकवर्ड प्रेशर बढ़ सकता है. एक या दो बार करने से कुछ नहीं होने वाला, बट व्हेन यू डू इट रिपीटेडली, रिकरेंटली एंड पुट इट दीज थिंग्स इन ए हैबिट, so then this problem can occur. Now for example, habit में, for example, somebody is working in the industrial area, suppose कोई इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहा है. सो इंडस्ट्रियल एरिया में मान लो कुछ क्या है कि वहाँ पे फ्यूम्स वगैरह है, धुआं वगैरह आ रहा है. ठीक है. तो क्या होता है कि 1-2 दिन तक जो है उसका वो धुआं से जो इरिटेशन वगैरह आएगा, तो उससे बहुत खूब उसको पानी निकलेगा आंख से, और बाद में क्या होगा? बाद में उसके लिए हैबिचुएट हो जाएगा 10-15 दिन के बाद. ऑल्दो देयर इज इरिटेशन, ओके, देयर इज नो लैक्रिमेशन बिकॉज वो हैबिचुएट हो गया. नाउ दिस इज डेंजरस. सो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ वेगावरोध ओनली. दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ वेगावरोध ओनली. नंबर 2, सपोज आपको अम्लपित्त हो गया या जो भी हुआ है, ठीक है, या आपको वोमिटिंग सेंसेशन आ रहा है. सपोज आप वोमिटिंग को रोक रहे हो, ये तो वॉलंटरी रोक रहे हो, एक होगा. दूसरा, यू आर टेकिंग सम ऑफ द ड्रग्स विच आर एंटी एमिटिक इन नेचर. थोड़ा बहुत जो है आपको जब वोमिटिंग लग रहा है, आप तुरंत जो है एंटी एमिटिक ड्रग ले रहे हो. ठीक है, मे बी एचटी ब्लॉकर्स, वट एवर, ऑनडेंसिट्रॉन जो भी है. नो, दिस इज ऑल्सो ए वेगावरोध ओनली. वोमिटिंग तो एक नेचुरल रिफ्लेक्स प्रोसेस है, उसको बाहर आने दो ना. ठीक है. अगर बहुत ज़्यादा जरूर है, पैथोलॉजिकल कंडीशन सीवियर है, वो तो अलग बात है. इन रूटीन में भी जो है गैस्ट्राइटिस हुआ है, आपको वोमिटिंग रिफ्लेक्स आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे कुछ पित्त का एक्युमुलेशन हो रहा है, उसको बाहर आने दो, वो तो नेचुरल प्रोसेस है. बट अगर आप उसको रोकेंगे, नाउ इट बिकम्स पैथोलॉजिकल एंड दिस लीड्स टू द प्रॉब्लम. हमें भी पता है. सिमिलरली इज द हिकअप, सिमिलरली इज द श्रमश्वास और डिस्निया. सपोज श्रमश्वास, अब डिस्निया को रोक रहे हो. व्हाट इज द वे ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिस्निया? डिस्निया को या तो आप कुछ कार्डियो प्रोटेक्टिव वैसोप्रेसर एजेंट्स दे रहे हो, ठीक है, तो या तो आप कोई डायरेटिक्स वगैरह दे रहे हो, ठीक है, या तो आप ब्रोंकोडायलेटर्स दे रहे हो. एक्चुअली दिस इज एक्चुअली प्रिवेंशन ऑफ द वेगास, प्रिवेंशन ऑफ द वेगास ओनली.
ठीक है, एंड दिस लीड्स टू द प्रॉब्लम, वन और द अदर वे यू आर ब्लॉकिंग द बॉडी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे क्या सर, आप जब पढ़ाते हैं तो हमें नींद भी आता अब हमें क्या करना है ना? सो अकॉर्डिंग टू जो शास्त्र जो है आपको सो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि निद्रा का रोध, हाँ ये भी बात है, जब नींद आता है तो आपको सो जाना चाहिए, ठीक है, नहीं तो वो जो है प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस को आप इफेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आप प्रभावित कर रहे हो, ठीक है। तो ये बात अलग है, हमेशा नींद आता है तो अलग बात है। सो व्हाट आई मीन टू से इज, जो हमारा मन में है कि वेग का धारण जो हम करते हैं वो वॉलंटरी ही करते हैं, हमने खांसी आ रहा था रोक के रखा, इतना ही नहीं है, बाकी चीज़ों की वजह से भी जो हमारा वेग का धारण होता रहता है। इट मे बी बाय मीन्स ऑफ फूड, इट मे बी बाय मीन्स ऑफ some other activity, or it may be by means of drugs, or it may be because of unwanted treatment. So when you are traveling in the bus, suppose है ना कि आपको यूरिनेशन आ रहा है बट बस वाला रोक नहीं रहा है, तो आप रोकेंगे ही। अब क्या होगा, वहाँ पे भी सेम सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक स्पिंचर एक्टिविटीज़, ट्राइगॉन का एक्शन है ना, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम से होता है। सो योर ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम को आप किसी ना किसी तरीके से प्रभावित कर रहे हो। So when same will continue for a longer duration, for more days, so years together, when it comes in your habit, so usually all the body autonomic activities जो है disturb हो जाएगा, and that leads to many problems. So therefore Ayurveda always says that Vegavarodha should not be done. किसी तरीके से Vegavarodha should not. So talking about Nidra, जब नींद सोने का टाइम है उस टाइम में आप नहीं सो रहे हो, जब सोने का टाइम नहीं है उस टाइम में आप सो रहे हो, ये भी तो वेगावरोध है। रात को 2 बजे सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं, नाइट आउट कर रहे हैं, नाइट ड्यूटी जो करने वाले हैं, जो वर्कर्स हैं नाइट शिफ्ट वाले, क्या कर रहे हैं, दिस इज वेगावरोधा, ठीक है। वेगावरोधा मतलब एक तो कॉमन चीज़ है कि निद्रा में कि जब सोना है वो ये टाइम है, सोने का टाइम है। ऐसा नहीं है कि आप सुबह को जो है 12 बजे सो रहे हो और हमें बोल रहे हैं कि सर हमें डिस्टर्ब मत करिए, वेगावरोध मत कराइए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रात को अगर आपको कोई 11 बजे उठा रहा है, 1 बजे उठा रहा है, तो या आप उठ रहे हो तो वो वेगावरोध है, निद्रा वेगावरोध है। सो एक्सेप्ट कुछ समर सीजन में आप दिन में भी सो सकते हो, ऐसे भी कुछ। एनीवे, सो आई एम मेकिंग द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर कि अपार्ट फ्रॉम पर्टिकुलरली हम वॉलंटरी करने के अलावा बाकी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से अनोइंगली हमारा वेगों का धारण होता रहता है। तो कॉन्स्टिपेशन, हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन हमने डिस्कशन किया था। एक्चुअली ये तो एक वेगावरोधजन्य है ना, कि जब पास कर रहे हैं तब बच्चा पास नहीं कर रहा है और उसके बाद विशेष साइकिल बढ़ता जाता है। सो दैट इज अगेन पुरुष वेगावरोधा, ठीक है। कहाँ पे मांसपिंड क्या है कि वहाँ पे दर्द होगा, है ना, पिंडिकोद्वेषण होगा पुरुष वेगावरोध में। कॉन्स्टिपेटेड जो पेशेंट है उससे जाके पूछो, उसका जो है जो कफ मसल में हमेशा पेन रहता है, कोई जस्ट ट्रेनिंग ज़्यादा करता है वो। एनीवे, ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वेग धारणा, ठीक है। बहुत बार क्या है कि हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं, वैसा नहीं है। इट टोटली डिस्टर्ब्स आवर बॉडी ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। एक बार हमारा बॉडी ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम हो गया ना, तो सेक्रेशन चला गया, स्मूथ मसल्स चला गया, कंट्रैक्शन चला गया, और बहुत सारे जो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ हमारा बॉडी में चल रहा है वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। रिदम सिटी ऑफ द हार्ट वो भी एक इनवॉलंटरी एक्टिविटी है, ओके। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू मेक यू क्लियर नाउ। So this is what I told, habit of suppression of the Vegas. Habit of suppression of the Vegas in the long term is nothing but suppression of the body autonomic nervous system of the body, which result in physiological changes in each cell of the body. इसका जो इफेक्ट है हर सेल में दिखाई पड़ेगा। So such habits leads to accumulation of the metabolic waste and at the micro and macro level in the body. So such withholdings may be due to the habit. ये क्यों हो रहा है वेग धारण? कभी कभी हैबिट से हो सकता है, मे बी बिकॉज ऑफ फियर, मे बी बिकॉज ऑफ हेजिटेशन, और
knowingly may be or unknowingly may be because of prajnaprada, स्मोकिंग प्रज्ञापराध है, ठीक है, और अनोइंगली ड्यू टू अज्ञाना और मिसपरसेप्शंस, कभी कभी अनोइंगली भी हो जाता है. सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज. ठीक है, सो वेग धारण जन्य की वजह से किस तरीके से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन होगा. धीरे 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 ऑटोनॉमिक सिस्टम चला गया, इम्यून सिस्टम में डिस्टर्बेंस आ गया. ठीक है, और इसकी की वजह से जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहे तो सेक्रेशंस नहीं होगा ठीक से. जब सेक्रेशंस नहीं होगा तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा. मेटाबॉलिज्म जब ठीक से नहीं होगा तो पता है आपको कि फूड का डाइजेशन नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, कैटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, और इम्यून सिस्टम के लिए जो बाई प्रोडक्ट्स चाहिए वो भी नहीं मिलेगा. इनडायरेक्टली इम्यून सिस्टम भी अफेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो अल्टीमेटली इट लीड्स टू सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड एंड अप इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन. ये याद रखना चाहिए, एक दो दिन का बात नहीं है. दिस इज बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस प्रैक्टिस. नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज Raja Yakshma or immunocompromisation due to Dhatukshaya, that is cachexic causes of immunocompromisation. What is that? Cachexic causes of immunocompromisation.